Hello friends, very good morning to all of you. Again I welcome you all for my this new video. Firstly, I would like to make a wish for you all. You all must be safe and secure at your home and offices during this pandemic time or corona second wave. Friends, this is my situation, or somewhere I would like to request you all, please do not leave your home without any solid reason. Just beware and follow the government instructions and avoid the crowd places. Friends, today I am here with the new topic in this my new video. Believe me, I put my 100% to find out such crucial points which I am about to share all the things in this video. So please share your valuable suggestion, and if you like it, so please like this video. So friends, here I go with my new topic which I selected today for this video. So my topic is, what are the pros and cons of real estate investment during this pandemic time or after the pandemic time. Friends, if I say about the positive things or negative things of the real estate investment during the pandemic time or after the pandemic time. So firstly, I would like to pick the negative things, I mean to say cons, because I believe I would like to finish all the things with the positive notes. So basically, what are the cons for real estate investment as far as this pandemic situation is concerned? Friends, before it, I would like to share my favorite line: nothing is permanent. Yes friends, nothing is permanent, and golden lines are waiting for us. The dark shadow will goes out and silver line come again, but it will take time, and finally we have to keep patience, and we have to forward every single step with very carefully. Friends, here I would like to come on the point, I mean to say, what are the negative factors for the real estate investment as far as this pandemic situation is concerned. So my first point which I would like to elaborate in this video that is negative sentiments. Yes friends, negative sentiments does not come over the night. जी हाँ दोस्तों, ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स है ये कोई एक रात में नहीं आए, इसके पीछे एक पूरा इतिहास है, पूरी एक हिस्ट्री है, और कहीं ना कहीं बायर्स का और इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं और अनुभव कर रहे हैं, पिछले 6-7 सालों में रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी डाउन पे आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान हुआ है, जिस वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स आना ही था। और बीइंग ए ह्यूमन, इफ़ आई से अबाउट ए कॉमन बायर्स और इन्वेस्टर्स, वो भी कहीं ना कहीं एक आम आदमी की तरह सोचेंगे और सोचते भी हैं कि जो इंडस्ट्री पिछले 6-7 सालों में कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पैसा लगाना, वहाँ पे निवेश करना क्या ठीक रहेगा, खासकर इस पैंडेमिक सिचुएशन में, और या जैसे ये पैंडेमिक सिचुएशन ख़त्म होती है उसके बाद। तो ये नेगेटिव जो सेंटिमेंट्स हैं, ये बहुत बड़ा एक कॉज है टू नॉट टू इन्वेस्टमेंट बाय द इन्वेस्टर्स इन दिस सेक्टर्स, और नॉट टू बी सीरियस टू बाय देयर ओन प्रॉपर्टी, और वी कैन से ड्रीम प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दिस टाइम। तो दोस्तों, जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए ना, इसमें भी कुछ सॉलिड फैक्टर है जो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ।
उस नेगेटिव सेंटीमेंट्स को क्रिएट करने में जो सबसे पहला जो मुझे बिंदु लगा, जो पॉइंट लगा काफ़ी स्टडी करने के बाद और जो मेरा 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है, वो मुझे लगा डीमोनेटाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन सबसे मेजर फैक्टर रहा इस नेगेटिव सेंटीमेंट्स को उभारने में, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट हुआ, जो इफ़ेक्ट हुआ ना, वो कहीं ना कहीं एक डेवलपर्स के पास जो कैश फ्लो आता था वो बिल्कुल स्टॉप हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, जिसकी वजह से उसके प्रोजेक्ट रुक गए, रेगुलर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी उन प्रोजेक्ट पे। और अगर मैं बात करूं पिछले 6-7 सालों में, तो एक डेवलपर काफ़ी इन चीज़ों से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत हताश भी है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रियल इस्टेट मात्र एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैश कंपोनेंट का यूज़ होता था। चाहे मैं वो ब्लैक मनी की बात करूं, काले धन की बात करूं, या एक जो व्यक्ति अपना चाहे वो कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं और ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास कैश बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, तो वो सब रुक गया, जिस वजह से प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं हो पाए। और काफ़ी सारे ऐसे डेवलपर्स थे जो फेल हो गए, जो अपनी दुकान गिरा के, अपने प्रोजेक्ट बंद करके वो या तो देश छोड़ के जा चुके हैं या अंडरग्राउंड है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स आया वो बहुत तेज़ी से उभरा। और इसमें देखो, अगर मैं बात करूं, एक जो जेन्युइन बायर था उस पर 3 तरीके से मार पड़ी। पहली मार उस पर यह पड़ी कि जो उसका एक सेविंग का पैसा था, जो उसने बहुत सालों से मेहनत खून पसीने से जो कमाया था, वो उसने डेवलपर्स को दे दिया, तो वो पैसा उसका फंस गया। दूसरा, उसने होम लोन लिया 80%, तो 80% जो होम लोन लिया उसकी EMI वो दे रहा है, तो वो अभी भी दे रहा है। दूसरा, कुछ ऐसे इसमें होम बायर थे जो कहीं ना कहीं किराए पे रह रहे थे, उनकी भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो तीसरी तरफ किराया भी दे रहे हैं। तो आप सोचिए, एक ऐसा जो बायर था, ऐसा जो प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला व्यक्ति था, जो अपने सपनों का घर उसने जो प्लान करा था, वो कहीं ना कहीं आज 3 चीज़ों से मार खा रहा है। वो अपना बेशकीमती जो बहुमूल्य पैसा था वो दे चुका है, EMI दे रहा है, और कहीं ना कहीं वो किराया भी भर रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न रहा जिसके वजह से लोग आज इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरा एक मेजर फैक्टर जो मुझे लगता है, जो एक्चुअल में है भी, वो है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जी हाँ दोस्तों, इसके आने से रियल इस्टेट के जो प्रोडक्ट हैं उन पे बहुत भारी भरकम टैक्स का इम्प्लीमेंट हुआ, जिसकी वजह से जो बायर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, वो उन्होंने सोचा भाई ये तो बहुत हद ही हो गई कि अब हम इतना ज़्यादा टैक्स भी कहाँ से दें। अगर मैं बात करूँ एक जेन्युइन बायर का, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस डिसीजन को भी एक नेगेटिव रूप में लिया, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने सपनों का घर लेना फ़िलहाल कुछ सालों के लिए बंद कर दिया था, या उसको डिले कर दिया अपने फ्लैट को लेने के लिए। ऐसी एक जो इन्वेस्टर्स होता है वो भी यही सोचता है कि भाई ठीक है कि कहीं ना कहीं मैं इस पैसों को अगर डेवलपर्स के लिए लगाऊंगा, उसके इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो मुझे इतना सारा टैक्स कंपोनेंट देना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर्स है टू द इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी इंडस्ट्री, तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। तीसरा एक और मेजर फैक्टर आया जो रहा आपका रेरा। जी हाँ दोस्तों, रियल इस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जब से आया है तब से कहीं ना कहीं मैं बात करूं, जो एक डेवलपर्स है उनको बांध दिया गया है, उनके ऊपर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी गई हैं। हालांकि ये फेवर टू बायर्स और इन्वेस्टर्स के है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इनिशियली रूप में जो डेवलपर्स थे, जिनकी एक मेंटलिटी, एक माइंडसेट बन गया था कि हम सॉफ्ट लॉन्च में प्रॉपर्टीज़ लॉन्च कर देंगे, प्री लॉन्च में प्रॉपर्टीज़ लॉन्च कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास काफ़ी सारा पैसा आ जाएगा और हम उसको या तो उसी प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हैं या किसी और दूसरी प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रुक गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डेवलपर्स के पास भी कैश फ्लो आना बिल्कुल बंद हो गया। और ये कहीं ना कहीं एक जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स लेके आया मार्केट में कि भाई अभी ये सही समय नहीं है कि प्रॉपर्टी में हम पैसा लगाएं या प्रॉपर्टी अभी ख़रीदें। ठीक है ना दोस्तों।
अब मैं इसमें जो बात करता हूँ अगले पॉइंट की, वो आती है फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, नोटबंदी हो गई, जीएसटी आ गया, रेरा आ गया, और कहीं ना कहीं मैं बात करूं इन सब चीज़ों को लेके जो नेगेटिव सेंटिमेंट्स के रूप में चले गए, तो एक मैं बात करूं बायर्स के रूप में या एक निवेशक के रूप में, तो उसे लगा कि भाई ये अभी सही समय नहीं है, क्योंकि फ्यूचर अभी इसका कुछ क्लियर नहीं है, कल को क्या होगा कुछ अभी कह नहीं सकते, कुछ भी अनसर्टेन नहीं है। गवर्नमेंट ने भी कुछ हेल्प करने की कोशिश करी जिसका कोई एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर अनसर्टेन की वजह से भी अभी लोग निवेश करने से और प्रॉपर्टी खरीदने से भी बच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो मैं अगला पॉइंट लेके आता हूँ वो है आपका ओवर सप्लाई इन मार्केट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप अनुभव करते हैं कि बहुत सारी ओवर सप्लाई हो चुकी है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से अभी जो खासकर इन्वेस्टर्स है वो बच रहा है, वो सोच रहा है कि भाई अभी जब ओवर सप्लाई है तो डिमांड कम होगी है, तो अब क्या कुछ नहीं पता आने वाले समय में इस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी भी नहीं बढ़ेगी। तो इन्वेस्टर्स के दिमाग में तो ये सब कुछ अभी चल रहा है, और ओवर सप्लाई होने की वजह से जो एक जेन्युइन ख़रीदार है वो कंफ्यूज हो गया है, वो सोच रहा है कि मैं कहाँ लूँ, कौन सी प्रॉपर्टी लूँ, क्योंकि उसे इतनी सारी प्रॉपर्टी होने की वजह से वो खुद कंफ्यूज हो गया है। तो वो भी अभी अपने इस डिसीजन को डिले करके रखा हुआ है कि भाई अभी हम ये सही समय नहीं समझ रहे कि इसमें हम अपना घर, सपनों का घर खरीदें। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो नेगेटिव आता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अभी इन्वेस्टमेंट करें या अभी अपने सपनों का घर ले या ना लें। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो अगला पॉइंट आता है वो भी बहुत बड़ा एक वाइटल, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है टू नॉट हैव द इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री राइट नाउ। वो है आपका ड्यू टू दिस और अर्लियर पेंडेमिक टाइम मैक्सिमम पीपल हैव लूज देयर जॉब, और मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर और वी कैन से बिजनेस पीपल लूज देयर बिजनेसेस। जी हाँ दोस्तों, पिछला जो लॉकडाउन था वो आपको पता है नेशन वाइड था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में जॉब चली गई हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में जो बिजनेसेस थे वो बंद हो गए हैं, और अभी तक भी उनका इम्पैक्ट है। और ये दूसरा लॉकडाउन और लग गया है जो स्टेट वाइज लग रहा है, जिसकी वजह से भी और जॉब्स जा रही हैं और बिजनेसेस लोगों के बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक जो बाइंग पावर है, एक जो कॉन्फिडेंस है लोगों का, वो अभी उस वे में नहीं आ पा रहा है कि वो ये सोच लें कि ये सही समय है और अभी घर लेने का और अभी इन्वेस्टमेंट करने का इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूँ, एक और इसमें फैक्टर आता है जो बहुत वैल्यू एड ऑन करता है टू नॉट इन्वेस्टमेंट इन दी रियल एस्टेट इंडस्ट्री और टू नॉट ऑन देयर ओन ड्रीम होम। वो है आपका अदर ऑप्शंस फॉर इन अदर इंडस्ट्री टू द इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी ऐसी और दूसरे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जो निवेशक है वो अपना पैसा लगा सकता है, जैसे शेयर मार्केट है, गोल्ड है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है। इन सब जगह पैसा लगाने की वजह से के ऑप्शन होने की वजह से वो अभी रियल एस्टेट में अपना पैसा नहीं लगा रहा, अभी निवेश नहीं कर रहा, जिसकी वजह से भी एक कॉन्स का फैक्टर आता है कि भाई अभी ये सही समय नहीं है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने कुछ ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स बताए जिसकी वजह से एक जो जेन्युइन बायर है जो अपने सपनों का घर अभी नहीं खरीद रहा, उसने डिले कर दिया है, और जो निवेशक है वो भी अभी रुका हुआ है और उसने अपने डिसीजन को डिले कर दिए हैं कि अभी ये सही समय नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का या प्रॉपर्टी खरीदने का। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आता हूँ पॉजिटिव फैक्टर्स पे, आई मीन टू से प्रोज पे। ऐसे कौन कौन से प्रोज हैं, ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये सही समय है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का और अपने सपनों का घर लेने का। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला बिंदु आता है, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका लो राइज ऑफ दी प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 6-7 सालों से प्रॉपर्टी के दाम कम पे कम हो गए हैं, जिसकी वजह से आज का जो समय है, आज के जो समय पे जो प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कीमतें पहले से ही कम हो गई हैं। तो अगर आप सोचिए आज प्रॉपर्टी की कीमत कम है
तो ये सही समय है। जो लोग कहीं ना कहीं किराए पे रह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जिनको ये फील हुआ इस कोरोना पीरियड के अंदर कि उनका अपना घर होना चाहिए, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने हार्शली उनसे बिहेव करा या कहीं ना कहीं उन पे पैसे नहीं थे तो उनसे किराए की डिमांड करी, तो उनको लगा कि भाई ठीक है, काश अगर हमारा अभी घर होता तो कितना अच्छा होता। तो सोचिए ये बिल्कुल सही समय है। अगर आप इतनी कम कीमत आज आपको ऑफ़र करी जा रही हैं, जिसकी वजह से अगर मैं बात करूं, सही समय है ये प्रॉपर्टी ख़रीदने का। दूसरा मैं इसमें जो पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता हूँ वो ऐड ऑन करना चाहता हूँ फ्रॉम द साइड ऑफ द निवेशक इन्वेस्टर्स। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए भी ये सही समय है कि डेवलपर्स अगर आज उनको काफ़ी कम कीमत पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ़र कर रहा है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आने वाले 10 से 15-20 सालों के बाद जो कीमतें बढ़ेंगी वो हो सकता है 5 गुना हो, 10 गुना हो। तो उस समय जब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचेंगे, जो उसका एक कैश उसका वो जो कैश बेनिफिट लेंगे, उसका जो रिटर्न वो बेनिफिट लेंगे, वो आप समझिए कितना मल्टीपल होगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी रही है टू द इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। तो वो कहीं ना कहीं आज के समय में सिद्ध भी होती है कि आज अगर प्रॉपर्टी के दाम कम हो गए तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा और सुनहरा समय है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं पॉजिटिव फैक्टर्स के दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, वो है स्कोप ऑफ मोर नेगोशिएशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आज डेवलपर्स कम कीमत पे आपको प्रॉपर्टी देता है तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है फ्रॉम द साइड डेवलपर्स वो है कि उसके पास कैश आएगा, उसके पास पैसा आएगा जो वो उस प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन में लगाएगा, जिसकी वजह से वो उस प्रॉपर्टी को टाइमली डिलीवर करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी में अगर मैं बात करता हूँ कि अगर एक बायर और इन्वेस्टर्स अक्रॉस द टेबल बैठता है और कहता है कि ठीक है, मैं फाइनलाइज़ करता हूँ आपकी इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए अपना डिसीजन, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप और नेगोशिएशन कर सकते हैं। कीमतें तो पहले ही कम हो चुकी हैं, डेवलपर्स आपको स्कीम्स दे रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं, उसके साथ साथ कीमतें कम का भी आपको ऑफ़र मिल रहा है। बट साथ में जब आप अक्रॉस दी टेबल बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नेगोशिएशन करने के ज़्यादा चांसेस हैं उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के वक्त और उसमें निवेश करने के वक्त। तो सोचिए दोस्तों, ये कितना बढ़िया समय है, कितना गोल्डन टाइम है। आप अपने सपनों का घर ले सकते हैं और आप अभी ये सही समय है, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ जो बहुत वैल्यूबल है और बहुत सपोर्टेबल है, बहुत फेवरेबल है फॉर दिस टाइम। वो है आपका लोएस्ट बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज नेशनलाइज्ड बैंक और प्राइवेट बैंक्स में बहुत कम कीमत कर दी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, जो होम लोन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.25% से लेकर 6.5% से भी स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं कुछ नेशनलाइज्ड बैंक और प्राइवेट बैंक की बात करूं। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था 2009 के अंदर, 10 और 9 की मैं बात कर रहा हूं, तो उस टाइम प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोग होम लोन लेते थे, उस टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो ऑलमोस्ट 10.5% से लेकर 11.25% होता था। तो दोस्तों आप सोचिए आप कि आज अगर ये 4-4.5% का गैप है तो होम लोन 2-4 साल के लिए तो होता नहीं है, मिनिमम 15-20 साल, 25 साल और आज 30 साल के लिए भी लोग ले रहे हैं और कुछ बैंक इसको ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप सोचिए इसका कितना एक इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी सेविंग पे। आप 4-4.5% पे आज अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है और ये अगर 15 से 20, 30, 25 सालों के लिए हम देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये सही समय है, खासकर जिन लोगों को अपना सपनों का घर चाहिए और जिन लोगों को कहीं ना कहीं एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ है ड्यूरिंग दी कोरोना वायरस, ड्यूरिंग दी लॉकडाउन टाइम, जो भी उनके लैंडलॉर्ड ने उनसे बिहेव करा है। तो ये बिल्कुल सही समय है, वो कम कीमत पे और नेगोशिएशन रेट के बाद और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एक अपने सपनों का घर ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ जो कि नंबर 4 है, वो है सब्सिडी ऑन लोन इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये इंफॉर्मेशन बहुत ब्रॉड हो चुकी है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं उन पे सब्सिडीज़ दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट पे सब्सिडीज़ दी जा रही है। इसके अलावा
जिन लोगों का पहला घर होगा, जिन लोगों की पहली प्रॉपर्टी होगी, उस पर भी उनको सब्सिडी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, होम लोन का जो इंटरेस्ट है उस पर जो सब्सिडी है वो 2.67 लाख टू 3.5 लाख तक भी जाती है। ये वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही समय है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका सपनों का घर होना चाहिए, और ऐसे कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि वो आज कम कीमत पे प्रॉपर्टी बना लें, तो कहीं ना कहीं मिनिमम 2.67 लाख की सेविंग तो होगी, जो आपकी EMI पे 1000 से 1500 रुपये तक का इम्पैक्ट डालेगी, और कहीं ना कहीं ये 2 से 2500 रुपये का भी इम्पैक्ट डालेगी, अगर मैं बात करूं जो इसकी टॉप सब्सिडी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद मैं आता हूं अपने 5वें पॉइंट पे, जो फेवरेबल है टू दी इन्वेस्टमेंट इन दिस टाइम और टू हैव टू बाय योर ओन प्रॉपर्टी। वो है आपका सब्सिडी ऑन स्टैम्प ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना की, उस पर स्टैम्प ड्यूटीज़ पे सब्सिडीज़ दी गई हैं, और कहीं ना कहीं फ़ीमेल अगर उसको क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें फ़ीमेल के नाम पे ही वो प्रॉपर्टी होगी, तो उस वजह से फ़ीमेल पे और एक या 2% की सब्सिडी और मिलती है अगर हम उसको रजिस्ट्री कराते हैं उस प्रॉपर्टी की। इसके अलावा एक अभी बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया है, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। उन्होंने पिछले लॉकडाउन में अनाउंस किया था कि स्टैम्प ड्यूटीज़ पे कुछ सब्सिडीज़ दी गई हैं। आप डेटाज पे मैं बात कर रहा हूँ, आप डेटाज उठा के देखेंगे तो पिछले लॉकडाउन में जो प्रॉपर्टीज़ खासकर जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ जंप करी गई थी, वो 40 to 42% जंप हो गई थी। उनकी जो सेल पे जो जंप आया था वो 40 to 40% आया था। जी हाँ दोस्तों, तो लोगों ने ये सोचा, बायर्स ने ये सोचा कि भाई अभी ये अगर हमें स्टैम्प ड्यूटीज़ पे सब्सिडी मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की उस स्टैम्प ड्यूटीज़ पे सेविंग हो गई, जिस वजह से जो जेन्युइन और रियल होम बायर थे, खासकर रेडी टू मूव की मैं बात करूं, वो प्रॉपर्टीज़ बहुत तेज़ी से बिकी। जी हाँ दोस्तों, मैं एक अगले पॉइंट पे आता हूं, वो 7वां पॉइंट है, वो है आपका ओन होम वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, वी आर इंडियन, और हम लोग जिस सोसाइटीज़ में रहते हैं वहाँ सभी को पता है कि अपना घर होना कितने सम्मान की बात है। ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में, हमारे सम्मान में 4 चांद लगाते हैं, क्योंकि एक घर बनाने के लिए एक इंसान पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। खासकर अगर हम अपने फोर फादर्स की हिस्ट्री देखें तो वो जब या तो रिटायर्ड होते थे या बिल्कुल एक उस उम्र के पड़ाव पे होते थे, तब कहीं वो कहीं जाके अपना घर बना पाते थे या लेने की सोचते थे। तो आप ये सोचिए, कहीं ना कहीं अगर मैं आज की बात करूं, प्रॉपर्टी होना एक सम्मान की बात है, और ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर्स लेके आता है कि हाँ भाई इस फलां व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी है। क्योंकि मानो मत मानो, जो किराया होता है वो हमेशा पराया होता है, और जो EMI होती है वो अपनी होती है। ये बहुत सुनहरी लाइन है कि EMI तो अपनी होती है और किराया पराया होता है, क्योंकि आप किराया 20 साल भी देंगे तो भी वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी। अगर आप EMI 20 साल 25 साल देते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और कहीं ना कहीं एक मेंटल पीस और जो आपका लिविंग स्टाइल है, स्टैंडर्ड है, उसको भी कहीं ना कहीं ये ग्रो करता है। तो इस वजह से ये जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो मैं बात करूं लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की, लो प्राइस ऑफर बाय दी डेवलपर्स, नेगोशिएशन इन दी प्राइस, आपका होम लोन सब्सिडीज़ है, तो ये ऐसे सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप आज अपने सपनों का घर ले सकते हैं, जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडिशन मिलती है, सेल्फ रियलाइजेशन मिलता है, एक सेल्फ पीस मिलती है, मेंटल पीस मिलती है, और कहीं ना कहीं आपको आपकी अपनी फैमिली की सिक्योरिटी भी फील होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मैं अपने 9वें पॉइंट पे आता हूँ, वो 8वें पॉइंट पे आता हूँ, वो भी बहुत वैल्यूबल फैक्टर है, और इसका जो हमें रियलाइजेशन हुआ वो पिछले लॉकडाउन और इस लॉकडाउन में भी हुआ। वो हुआ दोस्तों पैसिव इनकम। जी हाँ दोस्तों, पैसिव इनकम। जिन लोगों ने 10 से 20 साल पहले प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई थी या बनाई होंगी, उन्होंने इस लॉकडाउन में और पिछले लॉकडाउन में बैठे बैठाए इनकम कमाई है। जी हाँ दोस्तों, ये कटु सत्य है, बट ये आप मान के चलिए कि जो
उस टाइम इस डिसीजन को मैच्योर कर पाए, वही इसमें आज एक पॉजिटिव पोजीशन पे हैं। क्योंकि आपने देखा है पिछले लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन में काफ़ी सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पैसे की ज़रूरत थी और है भी। तो अगर मैं बात करूं इस समय में, ये सारे जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए पॉजिटिव, इन सब की वजह से अगर आज अपनी आप प्रॉपर्टी बना लेते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, खासकर मैं बात करूं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की, अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ दुकान, आपकी दुकान हो गई, ऑफिस हो गए, ये आप ले लेते हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में और लॉन्ग टर्म में एक पैसिव इनकम मिलेगी। साथ के साथ प्रॉपर्टी ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो डुअल बेनिफिट देता है, आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन और वी कैन से प्रॉपर्टी ग्रोथ, और पैरेलली यू कैन गेट रिलेंटलेसली कंटिन्यूसली ए पैसिव इनकम और ए नॉन स्टॉप इनकम और वी कैन से रेगुलर इनकम, राइट। तो कहीं ना कहीं वो जो इनकम है आपको आपके क्राइसिस में काम आएगी, कहीं ना कहीं आपको वो बैड टाइम में आपको बचाएगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही समय है, आप अपनी प्रॉपर्टी बना के उस पर आप पैसिव इनकम ले सकते हैं, साथ के साथ आप उसमें एक लॉन्ग टर्म में मल्टी फोल्ड ग्रोथ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मेरा नवा पॉइंट आता है। अब तक जो मैंने आठ पॉइंट जो आपको ब्रीफ करें, उसमें ये नवा पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट आता है, फिर भी मैंने इसको लिया क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। वो है आपका कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल वैल्यू एप्रिसिएशन और वी कैन से एसेट्स ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, अगर आज इस समय में आप अपनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, तो उसमें आपको पैसिव इनकम तो मिलेगी मिलेगी। साथ के साथ आप सोचिए 10 से 15 साल बाद, 20 साल बाद, या जितना भी आप उसको समय होल्ड करते हैं, पेशेंस रखते हैं, उस समय आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे, कैश इन करेंगे, तो दोस्तों उस समय उस प्रॉपर्टी की कीमत बियॉन्ड दी और इमेजिनेशन होगी। क्यों दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि माय वन ऑफ गोल्डन लाइन, फेवरेट लाइन, नथिंग इज़ परमानेंट। आज ये समय कठिन है, समस्याओं से भरा हुआ है, बट ये समय भी बीतेगा, अच्छा समय भी आएगा। तो आप ये समझिए कि हर चौथे 5वें साल बाद साइकिल चेंज होती है। तो आज जो कीमत है, जितने सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो कम कीमत के हों, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, होम लोन हो, सब्सिडी हो, ये जितने सारे मैंने फैक्टर्स बताए, इन सब के बावजूद अगर आप प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टीज़ के जो कम दाम हैं, उसकी जो कीमत कम हो चुकी है, उस पर जो प्रॉपर्टीज़ आप खरीदेंगे, उसका जो बेनिफिट मिलेगा, आप ये समझिए दोस्तों, वो कई गुना आपकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा चुका होगा, उसमें कई मल्टीफोल्ड आपको अप्रिसिएशन मिल चुका होगा। तो सोचिए वो समय कितना सुनहरा होगा। उस समय अगर आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस आता है, तो आप इस चीज़ को मटेरियलाइज करके कैश का बेनिफिट ले सकते हैं, उस पैसे का बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपने बच्चों की शादी के लिए उस पैसों को यूज़ कर सकते हैं, आप उनको फॉरेन एजुकेशन के लिए या कोई ऐसी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए कैश इन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कंसर्न से मैंने बताई कि आज अगर कम कीमत है तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। तो दोस्तों ये मेरे कुछ प्रोज और कॉन्स के पॉइंट थे। मैंने प्रोज को लास्ट में रखा, सेकंड में रखा, ताकि मेरी एक बिलीवनेस है कि मैं हमेशा पॉजिटिव नोट पे ही अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, चाहे वो मेरे पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशन हो, चाहे मेरी कोई डील हो, या मैं आज बात करूँ अपनी वीडियो की। तो दोस्तों आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए, और जो बेल का बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो वो सबसे पहले मिले, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। दूसरा दोस्तों, आप मुझे सजेशन, आपकी जो एडवाइस है, सजेशन है, वो ज़रूर दीजिए, क्योंकि जो मैंने वीडियो जो बनाई है, ये भी मैंने एक सजेशन पे ही बनाई है। मेरे एक व्यूअर ने, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप प्रोज एंड कॉन्स पे वीडियो बनाइए, क्या हैं वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को लेकर, खासकर अगर हम आज की बात करें। तो दोस्तों मैं आपसे अब विदा लेता हूं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मिले
और जो आपके वैल्यूएबल सजेशन है उसमें आप मुझे आइडियाज़ भी दे सकते हैं कि इन फ्यूचर में मैं कैसी वीडियो बनाऊं, ताकि मैं उन टॉपिक पे, उन इन्फॉर्मेशन पे अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होंगे बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन है, पर्सनल कोई क्वेरी है, कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या कोई अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज दे सकते हैं, जो कि सेम है, वो है 9811882385। जी हाँ दोस्तों, मेरी जो प्रोफेशनल मेल आईडी है उस पर भी आप क्वेरी पुटअप कर सकते हैं, कोई सजेशन है वो दे सकते हैं, या आपका कोई ऐसा डिसीजन है प्रॉपर्टी ख़रीदने का और इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, तो यू कैन पुट योर क्वेरी ऑन दिस। माय प्रोफेशनल मेल आईडी इज़ info@dineshdyal.in। जी हाँ दोस्तों, एक मेरी जीमेल आईडी है, उस पर भी आप शेयर कर सकते हैं अपने जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, खासकर प्रॉपर्टी को लेकर या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का प्लान है, वो है dineshdyal22@gmail.com। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक वैल्यू एड ऑन करेगा, कुछ ना कुछ आपको एक इन्फॉर्मेटिव एक नॉलेज भी देगा, इन्फॉर्मेशन भी देगा। साथ के साथ आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत ख़तरनाक है, जैसा कि हम सब जान चुके हैं और जान भी रहे हैं। तो जब तक कोई आप टीका भी लगवाइए, थोड़ा सा प्रिकॉशन भी रखिए, सैनिटाइज भी कीजिए अपने हाथ, बार बार अपने हाथ को साबुन से भी धोइए। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, हम सबको मिलकर करनी पड़ेंगी। बचाव ही हमारी सुरक्षा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आपके आसपास कोई नीडी व्यक्ति है, कोई हेल्प लेने के लिए, कोई आपसे हेल्प लेने के लिए आपसे अपना वॉइस बढ़ा रहा है, अपना हाथ बढ़ा रहा है, तो प्लीज़ उसकी भी आप मदद कीजिए। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।